ہے یہ کپواڑہ ضلع کا سرحدی اور دور دراز علاقہ ہے۔ میں جمگنڈ کی بات کروں گا کیونکہ میں نے بھی یہاں سے پڑھا ہے، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس میں پڑھانے کے لیے والدہ اور والدین سب 100% کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا ایجوکیشن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کارن یہ ہے کہ اسٹاف کی کمی ہے۔ تو یہاں میں انٹر لنکس روڈس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت دقت ہوتی۔ وہ ایک ہی چیز کامیاب ہے کہ یہاں زرہامہ سے جمعہ گنج کے لیے ٹنڈل ہو۔ بیمار اگر ہمیں ہو گیا تو ہمیں بہت مشکل ہے، اس کو چارپائی پہ اٹھا کر پھر ہم جمعہ گنج تک لاتے ہیں۔ جمعہ گنج سے پھر آگے گاڑی اگر مل گئی نہیں ملی تو بہت بڑی مشکلات ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک دور، جدید دور کہتے ہو، اس دور میں بھی ہم پانی پیدل چل کے لاتے ہیں۔ سرکار کو اس جمعہ گنج کے طرف توجہ کرنی ہوگی۔ کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے سنتے سحر ہو گئی۔ آداب ناظرین، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ہمارے پروگرام روبرو میں پروگرام کی ہوں سرخاب زہرا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلا ایپیسوڈ ہمیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے روکنا پڑا تھا۔ ہمارا دورہ جو تھا جمعہ گنج علاقے کا تھا جو نارتھ کشمیر کے ضلع کپوارہ میں پڑتا ہے۔ ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی، کچھ مدعوں پہ بات کی، لیکن آگے بڑھاتے ہیں اس پروگرام کو اور یہاں کے لوگوں سے کرتے ہیں بات اور جانتے ہیں کیا کچھ ڈیمانڈیں ہیں ان کی۔ تو آئے ناظرین بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے۔ ہم اس وقت موجود ہے جمعہ گنج کے ایک تعلیمی ادارے میں، کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات اور جانتے ہیں کہ پچھلے سال سے اب تک یہاں کے جو تعلیمی نظام ہے ان میں کتنا بدلاؤ دیکھنے کو ملا۔ یہ جو جمعہ گنج علاقہ ہے یہ کپواڑہ ضلع کا سرحدی اور دور دراز علاقہ ہے۔ یہ جمعہ گنج ویلی ایسی ہے کہ ایک ٹورسٹ ایریا ہے۔ ٹورسٹ ایریا ہونے کی ناطے بھی یہ سرکار کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سرکار کی طرف سے آگے جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، افسر ہوتے ہیں وغیرہ، یہ ان کی وجہ سے یہاں لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری اس وقت جو ہماری اس نے بتایا کہ ہم تعلیمی ادارے، ہماری یہ ہائی سکول جمعہ گنج ہے، یہ ہماری جمعہ گنج کا تاج ہے، لیکن اس میں سٹاف کی کمی ہے۔ سٹاف کی کمی کس طرح ہے کہ یہاں کے پوسٹ پہ تنخواہیں نکلتی ہیں اور وہ استاذ کام کہیں اور کرتے ہیں، تو یہ چوری سے وہ استاذ بیٹھے نہیں ہیں، یہ جو افیسر لوگ ہیں یہ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کی حاضری لگاتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ چھپی چوری کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ جو یہاں ہے وہ اپنے طرف سے محنت کرتے ہیں پڑھانے میں جتنا ان سے ہو سکتا ہے۔ ایجوکیشن یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچے بھی بہت شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ جو چھوٹا موٹا سٹاف ہے وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی کمیاں ہی ہیں سٹاف میں۔ تو ہم اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی بار زڈیو صاحب بھی آئے تھے، وہ دیکھ کے گئے، لیکن یہاں پہ ٹیمپریری بھیجتے ہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے، پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایجوکیشن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کارن یہ ہے کہ سٹاف کی کمی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے، سرکار کو چاہیے وہ ہمارے مسئلے سنیں نا، ان پر غور بھی کریں، اور ان یہاں جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ جو ہے مطلب ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی بیٹر زندگی جی سکیں۔ آج ہر جگہ پہ انٹرنیٹ ہے، آج ہر جگہ پہ ایجوکیشن ہے، آج ہر جگہ لوگ آن لائن مطلب کام کرتے ہیں، لیکن جمگنڈ کے بچے ابھی بھی، یہاں کے نوجوان ابھی بھی ویسے ہی، یہاں مطلب اتنی نہ کچھ ہے نہ ہمیں آج تک اتنا کچھ جو دیا ہے ہم اس میں تھینک فل ہیں اس کا، لیکن ہم اس پہ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہو، ہیلتھ یہاں سینٹرز ہیں
उन सेंटर्स के लिए एक बिल्डिंग है, अंदर देखो जाके उनकी हालत क्या है। मतलब स्कूल्स हैं, स्कूल की मैंने बात की, उसकी देख के हालत क्या है। हाई स्कूल है यहाँ पे, जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ मतलब बच्चों के लिए उधर वॉशरूम्स हैं या फर्नीचर। स्कूल को आप जब अंदर से देखोगे, फ्लोर आप देखोगे, फ्लोर फटा पड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो इन मसलों की तरफ सीरियसली मतलब इन चीज़ों की तरफ अपना जो है उनको खिंचाव लाना होगा और इन चीज़ों पे काम करना होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इस मतलब यहाँ की जो पिछड़ी हुई आवाम है, यहाँ की जो वॉइसलेस जो लोग हैं हमारे, खाली आवाज़ को सुनते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। काम किया जाना चाहिए और काम होना चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो काम करे ताकि हमारे लोग इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। जैसा कि हम बात करें एजुकेशन की, मैं भी यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ BHS जुमागंड का। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर एजुकेशन की हम बात करें, यहाँ जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारी स्टडी पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारा अभी तक सिलेबस जो है, टीचर्स हैं वो अपना बेस्ट देते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन स्टाफ की वजह से उन पर, टीचर्स पर भी बहुत ही इफ़ेक्ट होता है। और हमारे अगर बच्चे बात करें बच्चों की, तो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर स्टाफ की और भी स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे लाइब्रेरी, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करवाने मतलब टीचर्स, उनके लिए बहुत ही वैसा सामान यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं हमारे स्कूल के। आप जैसे मतलब देख सकते हैं हमारे स्कूल में कैसे क्या हालत है। आप देख सकते हैं कि कितना ब्रोक हुआ है स्कूल। इसलिए मतलब अगर हम बात करें इसकी मतलब स्टाफ की, तो स्टाफ की कमी है बहुत ही। अगर यहाँ के जो टीचर्स हैं उन पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, वो बच्चों को मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो मतलब उतना एफर्ट करते हैं अच्छा करने के, लेकिन स्टडी के मतलब स्टाफ की कमी के होने की वजह से वो अच्छे तरीके से बेस्ट नहीं दे पाते। थैंक्स। देखो मसला ये है कि हम जुमागंड के लोग जो हैं पिछड़े हुए हैं। हमारे तरफ किसी की निगाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई निगाह नहीं है। यहाँ एक सब सेंटर दिया हुआ है जुमागंड में, तो उसमें एक कंप्यूटर बैठता है। जबकि हमारे बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेचर पे उठा के हम कुपवाड़ा या बारामूला ले जाते हैं। हमें यहाँ भी सहूलत होनी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, डॉक्टर आने चाहिए। रही रोड की बात, जरामा से जुमागंड तक बिल्कुल काफ़ी टाइम से हम बोल रहे हैं कि बीकन को दिया जाए, हमारे जो आइंदा नस्ल है, हमारे जो बच्चे हैं आराम कर सके। हमें हर तरह की मुसीबत है। कितनी बातें बताएं गवर्नमेंट से, कितना बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं जुमागंड में। चाहे आपने अभी बात की सरपंच साहब तो बने, लेकिन सरपंच और पंचों के हाथ में गवर्नमेंट ने क्या दिया? बोला यूटी आ गई, वो आ गया, ये आ गया, उसके बाद नरेगा आई। नरेगा सब लोग करते रहे, गरीब बेरोजगार भत्ते है, बोला नहीं जी करते हैं। और जुमागंड में ये जो बिजली का कुछ साल पहले बिजली का एक प्रोग्राम चला, यहाँ तारें बिछाई गई, ट्रांसफार्म लगाए गए, तो लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो गिरना शुरू हो गया तो चीफ इंजीनियर साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव कुपवाड़ा के थे वो आए, उन्होंने खुद देखा। अभी एक सीजन गया था, बोला ये हमारा ये प्रोग्राम जो था बिजली यहाँ लाने का ये फेल हो गया। तो हमने पहले ही से डिमांड कर रखी थी कि बिजली का जो प्रोग्राम है जुमागंड में अंडरग्राउंड होगा, ये उस तरह की लाइन नहीं आ सकती है ये खंभों पे, लिहाजा वो फेल होगी। ये उसने तस्दीक की। जब से तस्दीक की आज तक कोई इस पर काम नहीं हुआ, कोई गौर फिक्र नहीं हुआ। हम बार बार अपनी बात जो है आला हुकाम तक रखते हैं, लेकिन आज भी रखी कि रूबरू प्रोग्राम की बदौलत ये आगे जाए, क्योंकि हमें पता भी नहीं है, क्या पता पीछे से लोगों के नाम लेकर बिजली के बिल चढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये मामला है कि बड़ा जुमागंड के स्कूल तो है, लेकिन यहाँ स्टाफ ही नहीं है। 7 पतियों में जहाँ 2 टीचर थे वहाँ 1 है, जहाँ 10 थे वहाँ 4 है। क्या कर सकते हैं हमारे बच्चों का भी दिल टूट चुका है कि भाई कहाँ जाएं, जब पढ़ाने वाला कोई है नहीं। जब उस्ताजों के पास हम आते हैं वो कहते हैं जी यहाँ स्टाफ ही नहीं है, आप जुमागंड वाले बोलते नहीं हो। हम किसको बोले?
हमारी कोई सुने तो तब बोले ना। अगर एमएलए साहब के पास जाएंगे तो वो भी अभी बोलता है कि नहीं जी गवर्नर राज है, क्या कर सकते हैं, वो भी अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन बस नहीं चलता है। अब फिर हमने बात की जड़यूस साहब से, वो कहते हैं नहीं जी टीचर बहुत कम है। तो गवर्नमेंट के पास कौन सी कमी है, मोदी जी के पास कौन सी कमी है, वो टीचर नहीं लगाए। अगर जरामा में जो लोग 50 या 75 हज़ार रुपया पेमेंट लेते हैं, क्या हमारे जुमागढ़ पिछड़े हुए इलाके में क्या वो ड्यूटी नहीं कर सकते? एक फौजी पता नहीं कहाँ से आता है, वो बॉर्डर की हिफाजत कर सकता है, तो ये टीचर जो हैं ये क्या जुमागढ़ में हमारे बच्चे, हमारी लेडीज, सब लोग 20 फुट बर्फ में जी सकते हैं, तो ये लोग क्या यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते? यहाँ रोजगार हमें तो अपना माल का है और आर्मी का है, बाकी और कुछ भी यहाँ नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। सरकार के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं है। जो हमारे उस्ताद यहाँ हैं टीचर्स अवेलेबल, तो वो तो मेहनत बहुत करवाते हैं, हमें बहुत पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। जो यहाँ जो हमारे सिलेबस हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि हमें स्टाफ बहुत कम है। जो प्राइमरी स्कूल है उसमें, हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल में अगर तकरीबन बात करें तो 10th होने चाहिए टीचर अवेलेबल यहाँ, तो यहाँ टीचर बिल्कुल नहीं है। टीचर टोटल अगर बात करें इस पे स्कूल पे 10 टीचर हैं, 10 में से टोटल 7 टीचर हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल जो जुमागढ़ का है ऐसे कम्प्लेक्स करके, इसमें तो टोटल ने 7 टीचर हैं। तो हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ नेट चलता है तो हम उस पर यूट्यूब पे थोड़े क्लास करते हैं। हमारे सिलेबस बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हैं। तो टीचर हमें बहुत करते हैं मेहनत पीछे से कि हम भी आगे जाएं, हमें भी शौक़ है, हमें भी टैलेंट है, हम भी आगे किसी लेवल पे जाके, ताकि हमारे जुमागढ़ में कोई KS अफसर हो, UPSC हो, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ हो। लेकिन हमारे जो जुमागढ़ के बहुत बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, क्योंकि हमें एजुकेशन की वजह से नहीं हो रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ अवेलेबल टीचर हैं बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत अच्छे हैं। बस स्टाफ की कमी है, ये कहना चाहता हूँ, हमें स्टाफ दी जाए, हमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ये अपील की जाती है। बाकी थैंक यू। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ जो कोई बीमार होता है उसको यहाँ से हमें कुपवाड़ा लेना पड़ता है, उसके बाद हमें श्रीनगर पहुँचाना पड़ता है। तो इस इलाके के लिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमारे को 50-60 बेड की हमारे यहाँ हॉस्पिटल लगनी चाहिए, तो फिर डॉक्टर भी बैठेंगे, हमारे यहाँ लोगों की परेशानियाँ दूर होंगी। TDA अथॉरिटी बनाई जाए, टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। हुकूमत को चाहिए वो एक TDA अथॉरिटी बनाए, वो यहाँ पे आके सर्वे करे और यहाँ पर जो है टूरिज़्म को जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। इस इनिशिएटिव पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ मतलब जहाँ पे भी जाओगे, यहाँ अभी आप यहाँ नीचे हो, जब आप ऊपर जाओगे आप शायद यहाँ से वापस जाने का आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना खूबसूरत इलाका है, इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हर जगह टूरिस्ट जाते हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे भी आएँ, ये भी अल्लाह ने बनाया है हमारे लिए, आपके लिए। इसको एक्सप्लोर करें, यहाँ की चीज़ों को देखें। टूरिज़्म पे काम करने की ज़रूरत है, टूरिज़्म को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर टूरिज़्म भी है, जो कि एक प्रीत है, शारदा प्रीत, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ आती है। उसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन, नज़दीक लोकेशन ये है। हम गवर्नमेंट से, आला हुकाम से, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस इनिशिएटिव पे काम करे और इस प्रीत को खोला जाए। यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जनाब बोलते हैं तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारी आवाज़ जैसे हो इधर से हम बोलते हैं तो आगे जाकर रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। क्या है, हमारी बात आगे जब पहुंची नहीं है, हमारे उस बात का कुछ हमें सुनाई नहीं देता, हमारे बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं आता है। हमने पहले भी बार बोलते रहे तो हमारी बात कोई नहीं आया। हमने पहले रोड का बताया कि हमारी रामा से जुमागढ़ तक रोड हमारी बीकन को होनी चाहिए, ताकि हमारी रोड बननी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर हैं, डॉक्टर यहाँ रखे हैं, वो आते हैं 3 दिन बैठते हैं डॉक्टर, तो वो घर में होते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको 3 दिन की पेमेंट देती है तो ठीक है, वो 3 दिन इधर आप बैठे जाएंगे। यहाँ के हमारे हम लोग की कोई फैसिलिटी है नहीं है बिना आर्मी के। यहाँ अगर आर्मी नहीं होती तो हम लोग शायद भूखे भी मरते।
क्यों आर्मी के साथ हम महीना महीना पोर्टर काम करते हैं तो बच्चों को पालते हैं। हमने गवर्नमेंट का हमें कुछ फायदा ही नहीं देखा आज तक। डॉक्टर जो है हमारे पेशेंट घर में पड़े रहते हैं, वो घर में बैठे हैं। जब वो घर में बैठे, उनका जो बड़े अफसर हैं उनको देखभाल करते नहीं है, ड्यूटी में भेजते नहीं है। आप पूछते हैं क्या, बोला हमारे 3 दिन शिफ्ट है। जब पीछे से उनको 3 दिन की शिफ्ट होगी तब वो यहाँ बोलते हैं कि हमारे 3 दिन की शिफ्ट है। हमारा हम लोगों का बुरा हाल इधर है। हमारे पेशेंट घर में पड़े रहते हैं, यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। वो एक आता है 3 दिन बैठता है, वो चले जाता है, दूसरा 3 दिन आ जाता है। क्या 3 दिन की गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट उनको पेमेंट दे रही है? अगर 3 दिन की पेमेंट दे रही है ठीक है, वो घर में बैठे रहे वहाँ नीचे। अगर उनको महीने की गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है तो फिर हमारे को इधर बॉर्डर एरिया, हमारे 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए। जब पुलिस अपना एजेंट के 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, इंडिया आर्मी 24 घंटे अपनी बॉर्डर पर ड्यूटी दे रही है, तो उनको कौन सा मुश्किल है? आज कौन से बर्फ उनके लिए यहाँ बैठने की? अगर बर्फ के टाइम वो नहीं बैठते तो मान सकते, लेकिन आज कौन से बर्फ उनके 3 दिन होते हैं कि हम 3 दिन की शिफ्ट हमारे को। हमारी हाई स्कूल जुमागंड, प्राइमरी स्कूल 4 हैं, मिडिल स्कूल 1 है। तो इसमें पढ़ाने के लिए वालदा और वालिदैन सब 100% कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, लेकिन एजुकेशन की तालीम मिलती है यहाँ, लेकिन हमें उस्ताज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत और कमी है। इस पे हम अपील करते हैं, मुतमन्ना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आला हुकूमत तक हमारी बात पहुंची जाए कि हमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, स्टाफ हमें दिया जाए। हमारे बच्चे तो टैलेंट हैं, पढ़ने के काबिल हैं, लेकिन उस्तादों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। हाई स्कूल जुमागंड में जिसमें यहाँ पे 12 पोस्ट हैं, यहाँ पे हमारे उस्ताद इस वक्त 5 हैं। 5 में भी एक ड्रॉप होता है, कभी 4 आते हैं, कभी 3 आते हैं। अब 10 क्लासें, 10 क्लासों में 3 उस्ताद या 4 उस्ताद 10 के सब्जेक्टों को तो पढ़ा नहीं सकते। ये हमारे लिए नाइंसाफ़ी है, जुल्म की बात है। यही हम अपील करते हैं मुतमाना एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी, एजुकेशन डायरेक्टर साहब से भी, DC कुपवाड़ा साहब से भी, एजुकेशन कुपवाड़ा ZDO साहब पिछली बार आए, बार बार हमने ये मुतालबा किया कि हमें स्टाफ दिया जाए। उसने कहा कि हम 1 हफ्ता वेट करो, हमें आपको 3 या 4 उस्ताद और दे देंगे। हमारा एक उस्ताद यहाँ पे आया हुआ, उसको भी ड्रॉप किया, यहाँ से उठाया लुधियाना में ले गए। तो ये इस तरह भी कोताहियाँ हमारे साथ हर वक्त हो रही हैं। ये हम मुतमाना अपील करते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए, तब हमारे बच्चे भी किस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। हमारे जुमागंड के पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ के टीचर लगाएं, जो कि नीचे के नहीं आ सकते, यहाँ के टीचर होने चाहिए। गवर्नमेंट के पास कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट के बोलते हैं गवर्नमेंट माँ बाप है। माँ बाप तो तब है जब हमारे बच्चे दर पदर ना हो जाए, हमारे बच्चे पढ़े, यहाँ का भी कोई ZDO बने, यहाँ का भी SP बने, यहाँ के भी कोई CU बने, यहाँ का भी कोई फौजी बने। यहाँ तो सब 0 ही 0 है। कितनी बातें सर बता सकते हैं? कोई बातें हमारे से बताने, यहाँ तो कुछ होता नहीं जी। ये चीज भी है, वो चीज भी है, रोड भी है, अस्पताल भी है। यहाँ दांत निकालने के लिए हमें कुपवाड़ा में पहुंचना है। अगर छोटा सा बाहर की हमें टेबलेट यहाँ मिलती है, कहीं छोटी सी जख्म लग जाएगी, उसके लिए हमें एक कंप्यूटर पट्टी कर सकते हैं, कहते हैं सब सेंटर है। कोई नहीं है यहाँ जुमागंड में, कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए अगर बोले तो कितनी बातें बोले। हमारी पतियां हैं, जैसे बन वाली है, कूची बन है, अत्तड़ है, सपन वाली, लुसाड़, डोगा पति, आपस में जाने के गाड़ी का रास्ता एक दूसरे के गांव में नहीं है। तो क्या बता सकते हैं सर? कोई बताने की गुंजाइश ही नहीं है। जैसा कि बात डेवलप हो रही है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जुमागंड में कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछले आपको 3 साल हो रहे हैं, 3 साल आप देख रहे हो जैसा रोड है हमारा तो वैसा ही है। यहाँ किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ का हाई स्कूल है, इसकी हालत देखो आप, जैसे कि ये जैसे गाय का शटर दिख रहा है, ये इसको नहीं किया इन्होंने डेवलप यहाँ पे। तो रोड बाकी जैसे हर चीज़ है यहाँ पे, जो भी है किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं हुई है। तो सबसे हमें ज़रूरत थी यहाँ पे रोड की। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेटवर्क इशू था, वो भी वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल का था, वो भी वैसा ही है। कुछ भी नहीं हुआ, रिपेयर तक नहीं हुए, तो बाकी डेवलप की बात ही नहीं है। तो जैसा कि हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हम जुमागंड की बात करेंगे। तो यहाँ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोग जो फेस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। मैं जो जुमागंड का मेन एरिया, यहाँ मतलब लिंक्स रोड की बहुत दिक्कत है।
क्योंकि जो ऐसे हमारे जैसे बन वाली है, कुछ भी बन आगे अतड़ है या पीछे सपन वाली के एरिया है, तो यहाँ मतलब इंटरलिंक्स रोड्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से मतलब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ अगर किसी को कोई अभी यहाँ हमारा राशन स्टोर जो है तो ये मतलब इधर ही हमारे जुम्मागुंड मेन में है, तो यहाँ पे किसी को राशन निकालने को कंधे पे उठा के बन वाली लेनी पड़ती है या आगे कुछ बनातर लेनी पड़ती है। तो यहाँ हमारा ये रोड्स निकलनी चाहिए और इनको मैक्सिमाइज रोड निकलनी चाहिए ताकि हर घर रोड पहुँचनी चाहिए। देखिए जी, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट मैंने पहले भी कहा, डेवलपमेंट यहाँ वो वाली डेवलपमेंट सिर्फ नाम की है, मेरे एंगल से सिर्फ नाम की है, क्योंकि यहाँ मतलब हर एक सेक्टर का जो है वो जूं का त्यों है। रोड, जिस रोड से आप चल के आए, हर जगह हर घर में मतलब रोड है, लेकिन ये वो बॉर्डर इलाका है जहाँ पे रोड की तो बुरी हालत है, खस्ता हालत है, ना रोड को मैग्डमाइज भी नहीं है, ना रोड के ऊपर इंसान का पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ियों की तो बात ही नहीं है। उसके अलावा अगर हम गांव की बात करें, यहाँ छोटे छोटे मोहल्ले हैं, बड़ी बड़ी हर मोहल्ले के अंदर आबादी है, लेकिन वो आज भी इस जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक दौर, जदीद दौर कहते हो, इस दौर में भी हम पानी पैदल चल के लाते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ मतलब ये जो रोड की वजह से आज भी यहाँ से ऊपर चल के सामान उठा के दुकान से लेना पड़ता है। किराने के जो सामान होता है वो यहाँ आज भी उठाकर ऊपर लिया जाता है। इस डेवलपमेंट यहाँ जिस तरह होनी चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं रही। जुमागुंड में जो ज़रहामा जुमागुंड रोड है, ये पिछले 5-8 साल 10 साल से निकली हुई है, ये कामयाब कभी भी नहीं हुई। जब वो बना रहे थे 1 साल रही थी बस, उसके बाद कामयाब नहीं है। जब भी पानी आता है बह जाती है, आज भी खड्डे हैं। तो इसका ये है कि हमारे एमएलए साहब ने जो असेंबली में सवाल उठाया था टंडल का, सिर्फ वो एक ही चीज़ कामयाब है कि यहाँ ज़रहामा से जुमागुंड के लिए टंडल हो, टंडल से पास, बाकी ये पैसा सब ज़ाया जाता है सरकार का। इसको हम कितनी भी कोशिश करें, ये पैसा ज़ाया जाता है, बार बार इसको पानी ले जाता है। आज भी हमें परेशानी है, ज़रहामा से जुमागुंड छोटी गाड़ी आ नहीं सकती है, बड़ी परेशानी। और इलाके में जो अभी हमारे एक सीनियर ने बताया कि ये पत्तियों की रोडों के बारे में, ये हमारे कुची बन, अतड़ बन वाली, सपन वाली, गोगलनेरा, डोगा वगैरह, लुसाड़, इन रोडों की, लिंक रोडों की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारा इलाका जो है जुमागुंड, इसके बीच में एक बड़े 2 नाले चलते हैं, 2 नाले इस इलाके को आपस में काटते रहते हैं गाँव को। इन पे तकरीबन 10-15 जो क्रॉसिंग हैं, पुल हैं, उनकी पक्के पुलों की ज़रूरत है, लेकिन सरकार अभी तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार से गुजारिश है, ये मामूली चीज़ें नहीं, इलाका जुमागुंड मार्च अप्रैल मई में कट जाता है, लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, इस गांव से उस गांव तक बीच में नाले काट लेते हैं। पुलों की ज़रूरत है, इस यहाँ फंड्स लगाने की ज़रूरत है, इसलिए डेवलपमेंट का मामला है। इधर तो बड़ी परेशानी है, सड़कें हैं, ये हर मामले में यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है। सरकार से गुजारिश है कि हमारे ये मामले खाली सुने ना, रूबरू प्रोग्राम की बदौलत सुने ना, इस पर अमल भी करें, इस पर गौर करें। ये हमारे इन लोगों का जो आवाज़ है, इसकी ये पूरी हो। अगली बार हमारा जो प्रोग्राम हो, ताकि उसमें हमें ये ना लाना पड़े कि आज भी कुछ नहीं हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे काम होने चाहिए। सर हमारी जो लिंक रोडें हैं, जुमागुंड तक तो रोड है, जेसीबी है तो है, लेकिन आगे जो गांव में हमारे को लिंक रोडें हैं, किसी गांव में भी रोड नहीं है। रोड होनी चाहिए हैं, और काफ़ी साफ गांव में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बीमार अगर हमें हो गया तो हमें बहुत मुश्किल है, उसको चारपाई पे उठाकर फिर हम जुमागुंड तक लाते हैं। जुमागुंड से फिर आगे गाड़ी अगर मिल गई नहीं मिली तो बहुत बड़ी मुश्किलात होते हैं। और सर ये जो बिजली के बारे में सर जो बात किया है कि चलो यहाँ तक तारें लगी हुई हैं, एक गांव वो है कि जिसमें अभी तक तार का पोल भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। एक गांव वो है बनवाली, नहीं वहाँ रोड है, नहीं कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ इतनी मुश्किलात है
और ऐसे ही है अतड़ है, वहाँ तो तारा शारा पहुँचे हैं लेकिन रोड वहाँ भी पूरी अच्छे तरीके से कुछ बंद नहीं है, कच्ची रोड ऐसे थोड़ा बहुत आर्मी ने किया है वहाँ पे। और हमारे जो सपन वाली है, लू साठ बन वाली, इसमें तो रोड भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है रोड। बहुत मुश्किलात हम लोगों को होती है सर, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यहाँ ये मुश्किलात हाल होनी चाहिए। जुम्मागढ़ के लोगों से हमने बात की, चाहे बात एजुकेशन की हो, डेवलपमेंट की हो, कम्युनिकेशन की हो या बाकी मुद्दों की हो, लेकिन बदकिस्मती से हमने कई दौरे यहाँ इस इलाके में किए, लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलात से ये दो चार है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम का आपके एरिया में हो तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।